Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Title बच्चों यह class 4th lesson poem. The poem unwan against idleness and mischief. Against idleness and mischief. This idleness and mischief. Most of the people pronounce the word wrongly. It's not mischief. It's mischief, right? It is mischief. So ये जो poem है ये इसाक वाट्स ने लिखी है और इस poem का जो दिल है या मैं कहूँ इस पोएम का थीम है, जो इस पोएम का क्रक्स है, जो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है, वो ये है कि हमें किसी भी हालत में बेकार या अस पज नह कुन तह हालतस मज कुन तह सातन बेकार रोजन की. Beकार means when we should not be inactive, we should not be idle at any stage of our life. And there's a reason for that. Why? Because one there's a great saying in English which says like, an idle man's mind is the workshop of devil. So once if you sit idle, you do nothing, you just waste your time doing nothing. What will happen? It will be easier for the Satan, for the devil, to 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 make you or to transform you into a mischief. अगर जन अस बेकार बेहमो ना बेकार बेहमो अस कह कमा शमा करो न कहें. शैतान सज खतर आसान कि सह सान जिंदगी मज तो सह कर कत मज चेंज सह बना मिसचफ. मिसचफ गो मिसचफ गो इंसान मिसचफ इस्तेमाल कर एज सिंगुलर इस्तेमाल कर एज प्लूरल, राइट. मिसचफ इट मीन्स गो इंसान या तम इंसान यमो सतन बेकिस नुकसान या बेकिस परेशानी गसान. ठीक, यहाँ पर भी इसका मीन लिखा है आपके इसमें. मिसचफ इज वन तम सम क्या mischief is somebody whose behavior is slightly bad, जिसका बिहेवियर थोड़ा खराब हो और जिसके होने से दूसरों जिसके उसके बिहेवियर से दूसरों को नुकसान पहुंचता हो या दूसरों को हर्ट होता हो, उसको हम बोलते हैं मिसचफ, राइट. सो idleness means inactivity, when you are doing nothing. Okay, the state of being idle. And against means opposite to. So this poem is against, यानी ये खिलाफ का अख बिकारी तो बे अख मिसचफ आसनस. ठीक. So this poem is against idleness and it is also against mischief, right. These two words, idleness and mischief, let me remind you, let me tell you, I'll make you clear this thing. अगर का इंसान बेकार ओस and mumkin possibility likelihood to say mischief, right. If somebody has nothing to do, there is every likelihood that he could be a mischief as well. An idle man and idle boy can be a mischief, right. Akh bekar kut akh bekar insan hek zururi shud ki it is likely, it is highly possible कि से एक mischief te ase. और ये पोएम किसने लिखी है? इज़ाक वाट्स. इज़ाक वाट्स ISSAC, इज़ाक WATTS वाट्स. So the poem is written by Isaac Waters and the poem is entitled as Against Idleness and Mischief. I am repeating this word time and again so as to make you utter this word with correct pronunciation. Otherwise, people now generally they just pronounce the word as mischief, which is wrong. It's mischief, right? Mischief. Against idleness and mischief. So let me start the poem. How doth DOTH? It is not does. It is actually it is does. It is does. So we will just read it like this. How does the little busy bee improve each shining hour and gather honey all the day from every opening flower? एक सुबह जो शायर था इज़ाक वाट्स, वो सोच में पड़ गया. एक छोटी सी शहद की मक्खी यस कशर पे माशर वन यथ पे मतलब दोहस यह कथ पे पॉसिबल कि यह पोश पत कर रस अमुक जमा पत बना यह माश. पोएट हैरान गसान. The poet is surprised to see a little creature like honey bee,
अपने हर एक पल को खूबसूरत बनाती है, बिकॉज शी कीप्स मूविंग फ्रॉम फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर टू गैदर नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स एंड देन मेकिंग अ स्वीट थिंग, व्हाट इज दैट कॉल्ड, हनी। फिर इन इस रस से वो शहद बनाती है और हर एक खिलते हुए फूल पर वो जाती है। यहाँ पर लिखा इम्प्रूव ई शाइनिंग ओवर, इसके माने जो हर जो जो उसका जो पोष पट पोष बता, इसलिए जो उसका हर एक पल है वो बड़ा खूबसूरत होता है, बिकॉज उसका विजिट होता है फूलों की तरफ, उनको विजिट करती है और फिर फूल से वो रस मतलब उनसे वो रस चूसती है और फिर उस रस को अपने घर में लेती है। जो उसका घर कौन है, व्हाट इज द होम ऑफ द बी कॉल्ड, मतलब उसको हम सेल भी बोलते हैं, हनी काम भी बोलते हैं, वहां पर लेती है और फिर उस हनी इस रस से वहां पर क्या बनाती है, शहद। अब शायर परेशान है कि एक छोटा सा ये क्रिएचर, ये इसके लिए कैसे मुमकिन है ये हर फूल पे जाए, फिर वो वहां से रस लें, फिर शहद बनाए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस पर निकल के आती है कि ये जो लफ्ज हुआ बुजी बी मैंने जो हर वक्त काम में मशगूल रहती है, वट उसका काम क्या है, टू गो टू ईच एंड एवरी फ्लावर, हर एक फूल के पास जाना, उस फूल से रस निकालना, खिलते हुए फूलों से रस जमा करना, ठीक। एंड गैदर हनी ऑल द डे एंड फ्रॉम एवरी ओपनिंग फ्लावर, हाउ स्किलफुली शी बिल्ड्स हरसेल्फ, और फिर वो किस तरह, वो किस कारीगरी से, किस आर्ट से वो अपना घर तामीर करती है। अगर आपने देखा होगा तो उसके घर में छोटे छोटे उनको हम बोलते हैं कंपार्टमेंट्स, है ना। फिर वो अपना घर बनाती है, बड़ी हुनरमंदी से वो अपना घर बनाती है, ये शहद की मक्खी। हाउ नीट शी स्प्रेड द वैक्स, फिर जो वैक्स लाती है वो किस तरह इसको बड़ी सफाई से वहां पर स्प्रेड करती है। एंड लेवर्स हार्ड टू स्टोर इट वेल, फिर इसको काफी मेहनत लगती है, किसके लिए, इस शहद को स्टोर करने के लिए। विद स्वीट उस मतलब गोची आनाई वसनो रस पची वातावरण मकान मतलब होमस मज तक पर असल पर चाना, और उसको काफी मेहनत लगती है, किसके लिए, इस शहद को स्टोर करने के लिए। In works of labor or of skill, I would be busy too, but Satan finds some mischief still for idle hands to do. In works of labor or skill, I would be, जब मुझे भी काम होता तो मैं भी बिजी रहता हूँ, शायर कहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस पाइम का जो दिल है वो ये है कि अगर इंसान मतलब बेकार हो इस काम करने की, अमिस दिमाग मज शैतान, तो शैतान करना अमिस क्या, अमिस करना शैतान तम काम यम बेन कर हट, यानी अमिश करान शैतान तम अमिश करान शैतान तब्दील अकिस इंसान सद पे अकिस मिसचिफ बनस मज, यानी जर्नी फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग इनटू मिसचिफ, it just needs only one thing, you have to be idle and it will be easy for shaitan to come and, और आपको क्या करेगा वो, he will drive, वो आपको उन काम की तरफ राग़िब करेगा जिन कामों से दूसरों को नुकसान या हर्ट होता हो, ठीक। तो अगर आप बेकार हो तो याद रखिए शैतान आपके दिमाग पर हमला करेगा और आपसे वो क्या करवाएगा, मिस्टेक, शरारतें करवाएगा, लोगों को आप तंग करोगे, आप लोगों को हर्ट करोगे। इन बुक्स or work or helpful play, that my first years be passed, that I may give for every day some good account at last. और in books or work, किताबों में, कामों में, let my first years be, मैं चाहता हूँ जो मेरे पहले साल हैं वो किताबों में और हल्दी खेल कूद में कटें, ठीक। that I may give for every day some good account at last, ताकि हर दिन में जब मैं मतलब दिन खत्म हो तो मैं दिन के आखिर में कुछ अच्छे कामों का भी को याद करूं, ये शायर कहता है इसाक वाटस। तो अगर आपसे कोई कहेगा कि इस पोयम का क्रक्स क्या है, समरी क्या है, वो ये है कि हमें किसी भी हालत में आइडल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम जब आइडल होंगे तो हम मिस्चिफ भी हो सकते हैं, ठीक। इसीलिए हमें अपने आप को हमेशा किसी न किसी काम में अपने आप को एंगेज करना चाहिए। तो यहाँ पर जो लफ्ज आ गया ना मिस्चफ, मिस्चफ है वन हु कॉजेस हार्म, मिस्चफ मीन्स वन हु कॉजेस हार्म, HARM, हार्म और हर्ट, जिससे किसी का दिल दुखता हो, जिससे किसी को नुकसान होता है, उसको हम बोलते हैं मिस्चफ। और जब मिस्चफ किसकी कारस्तानी है असल में,
शैतान की। शैतान कैसे आता है? ये इंसान शैतान इंसान को कैसे मिस्चिफ बनाता है? जब इंसान बेकार हो, जब इंसान कोई काम नहीं करता हो, तो इस शैतान के लिए आसान है उस इंसान को क्या बनाना, मिस्चिफ। इसीलिए हमें हर वक्त अपने आप को एंगेज रखना चाहिए अच्छे काम में। इवन कि अगर आप खेलोगे भी ना कोई हेल्दी मतलब अच्छी मतलब हेल्थफुल प्ले, कोई ऐसी गेम जिससे आपकी सेहत मतलब फुटबॉल वगैरह से, तो वो भी अच्छा है, लेकिन बेकार मत रहो, ठीक है ना। तो इस तरह हमने आज ये पोएम पढ़ी, अगेंस्ट आइडलनेस एंड मिस्टेक। तो कल मैं इसके टेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।